everyone, and welcome to today's program, rightfully named Justaju Ek Sham Sur Ke Naam. As the name suggests, and Sangeet Foundation is very proud to present a beautiful evening of some exceptional songs by the Bhajan Samrat himself, Padma Shri Anup Jalota ji, along with another exceptional singer and artist from the Bay Area, California, Miss Alka Bhatnagar. I would like to take this opportunity to quickly talk about the vision of Sangeet Foundation, which believes in happiness through music and performing arts. Founded by Shutopa and Joyanture, Sangeet Foundation is about raising awareness about mental health and aspires to showcase the power of music as a mental health therapy. We work with various universities like De Montfort and SOAS and charities to help us in this cause. Our patrons are Padma Shri, Aparna Sen and Pandit Vikram Ghosh, along with our happiness ambassadors, acclaimed artist Pilu Vidyarthi, and the great-grandson of Wahid Ali Shah, Mr. Shahenshah Mirza. We are indebted to all our artists and our members, without whom none of what Sangeet Foundation has achieved so far would be possible. So thank you to all our members and all our celebrities and artists for supporting us every step of the way. And I have to take this opportunity to thank our broadcasting partner today, Trudkami. Thank you, Amber, for helping us on this and for this beautiful collaboration. And we welcome you on the Sangeet Foundation platform as well. Without any further ado, it is time also now to welcome our guests and our viewers who are waiting in the room, in the back room. Okay, Ajay, let's see. So are you looking forward to the evening today? Oh, what are your expectations? Oh, I'm waiting to listen to a few of the beautiful bhajans and ghazals Anup ji has sung for everybody. It's such an honor to be here and to be able to listen to him first hand live. So I'm really looking forward to that. Absolutely. Yes. So let's go to Meena Soni ji. How are you feeling today? What are your expectations from the evening? I'm very excited. This is the last minute call I had from my sister-in-law, and she said, would you like to join? I said, would I not? Of course I would. I've been waiting for this for a long time. I'm really privileged to be here. Thank you. Looking forward to this. It's an honor. It's an honor. I'm sure we're going to have a brilliant evening. Vidhan Das ji, what can we hear from you? I'm super excited. Such a legendary singer, Anup Jalota ji, the Padma Shri awardee. I'm really excited to hear him here today. Thank you. Thank you so much. And I can't see Aparna on the screen, but I have to get Aparna on because I promised Shantanu. So Shantanu is passing the baton to Aparna. Yeah, Aparna, are you there? Yeah, just switch on the microphones. Yeah. Ab dikhai de raha hai? Yeah. Hello everybody. I'm really excited for this program, for this evening. जब जयंतदा ने बोला कि एक गाना select करने के लिए, तो it was really difficult for me to choose one song from his thousands of songs. So बड़ी मुश्किल से मतलब जो भी मैं choose करती हूँ मुझे लगता है ये दूँ वो दूँ फिर anyway तो एक choose किया. तो thank you जयंतदा and नुपुर दी, बहुत अच्छा मतलब wait कर रहे हैं कि कैसा हो. Brilliant. Yeah, I'm sure we are all looking forward to this evening. I think the person I really want to call on now is Nupurdi. Nupurdi, are you there? I am. I can't see. Yes. So what are you looking forward to? What do you think is going to happen besides me talking too much, of course? No, we need you to do the talking and the introduction. But yeah, I'm really excited to have Anup Jalota ji singing for us. It's a privilege, I think, to have this exclusive kind of gathering and listening to all those songs that we once upon a time actually used to sing ourselves and reliving all those days. So really excited. Thank you. Brilliant. Thank you so much, Nupurdi. So you can just request everyone to switch off the cameras so we can begin the show. Okay, so if everyone actually switches off the camera, then we can start our program for the evening. Yeah, super excited, right? Obviously, we have the legend Anup Jalota ji himself, and also we have another artist, Miss Alka Bhatnagar. So without any further wait, I think what I will like to do is, I know everybody, no one wants to hear me talk,
which is fair. And I think we all want to listen to the songs and talk to Anup ji and Alka ji. So quickly, I am going to introduce Alka ji to you. So Alka Bhatnagar is a multifaceted and highly accomplished Bollywood singer. She was born in a family with a long tradition in music. She had the privilege of learning music from famous maestros like Pandit Ganesh Prasad Mishra, Ustad Altaf Hussain, and Vinod Chatterjee, to name a few. She is a versatile singer and was elected twice as the Democratic Delegate of District 25 Area, California, USA. She is the recipient of many prestigious awards by legendary actor Shri Raj Kapoor, Raj Kumar, and music director Khayyam Sahab himself. Alka ji has been conferred with a very prestigious UP Ratna Award by the Government of India and also assigned as Cultural Ambassador in USA. She has also been awarded the prestigious Rumi Award for her contribution in the field of music. And believe me, when she sent me a profile, it was, I think, about 5 or 10 pages to be precise. So she's done it all in music. But I could not bring it all in here. So what we are going to do is now we are going to bring in Alka Bhatnagar ji and let her do justice to all the awards and all the effort that she has put into this. Alka ji, welcome to the show. Welcome to Sangeet Foundation. Namaskar. Namaskar. Namaskar, Alka ji. Such a privilege and honor to have you on Sangeet Foundation. I think we are not going to waste any more time in my talking. Nobody wants to hear me, honestly. I think we'll start with your song. Thank you. Thank you. कैसे हो तुम नौजवान, कितने हंसी मेहमान, कैसे हो तुम नौजवान, कितने हंसी मेहमान, कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है सुबह, कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है सुबह, आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। देखा मंचल के जिगर, बिजली गिरा दे उधर, देखा मंचल के जिगर, बिजली गिरा दे उधर, किसका जला आशिया, बिजली को ये क्या खबर, किसका जला आशिया, बिजली को ये क्या खबर, आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान,
शौक से जी इश्क के आए मेहरबान। थैंक यू। ब्यूटिफुल अलका जी, मैंने तो मतलब क्या बोलूं, अब लेट द पीपल ओनली डिसाइड, बट इट्स ब्रिलियंट। सो यू हैव अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। कमाल का गाया आपने। अरे आपको वेलकम कर रही थी मैं अनूप जी। नहीं, मैं तो छुपा हुआ हूँ अभी। चलिए अलका जी, आप अपना बिग रिस्पांसिबिलिटी पूरा कर दीजिए। वेलकमिंग अनूप जलोटा जी। जी, वो कहते हैं ना कि सूरज को कैसे दिया दिखाया जाए वाली बात है। जिन कलाकार को मैं बुलाना चाह रही हूँ वो पूरी दुनिया में इतने फेमस हैं, इतने प्यार करते हैं कि मतलब क्या बताएं, बच्चा बच्चा उनको जानता है। गजल के बादशाह और भजन के सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी, इनकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं इनके बारे में कितने अवार्ड्स और कितनी तारीफ करूं, इतना बता सकती हूँ कि इन्होंने पूरा ज्ञान जो मेनली सीखा है संगीत अपने पिताजी पुरुषोत्तम दास जलोटा जी से। और मैं उनसे मिली हुई अंकल जी से इतने गुणी अंकल जी रहे हैं, और अनूप जी का तो खैर दोनों का कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बस अनूप जी को वेलकम ही करना चाहूंगी कि वो आए और अपनी आवाज से पूरा जादू। नमस्कार नमस्कार, लो मैं आ गया। नमस्कार अनूप जी। आई मीन क्या बोलूं मैं, थैंक यू सो मच अलका जी। ऑफ कोर्स जैसे हम लोग बात ही कर रहे थे कि अलका जी इज द मेन रीजन व्हाई अनूप जी इज ओवर हियर, एंड थैंक यू सो मच। बट जैसे अलका जी ने कहा पद्मश्री, भारत भजन सम्राट एंड ऑल ऑफ दैट। अनूप जी, मैं एक छोटा सा चीज मैं ही यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, मैं जो अभी बता ही रही थी आपको, and this is for the viewers, for the people who are actually listening in. You might not know this about him. He is obviously, he's a well-known singer and everybody knows Anup Jalota ji. But what I came to, Anup ji, शायद अब 1 महीना हो गया हम एक दूसरे से इस प्रोग्राम को लेके बात कर रहे हैं, तो मैंने इनको इतना परेशान किया, इतना टाइम परेशान किया। जब भी परेशान किया, Anup ji actually replied. If he did not pick up the phone, he made sure he called me back. So Anup ji, I mean, there's so much to learn from a great person like you. Thank you so much. I mean, it's been such an honor. Such an honor. Thank you so much. It's a pleasure. मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे बातें हो रही हैं, आप लोग मिले हैं। लेकिन मुझे अलका जी ने विशेष कहा था कि इस ग्रुप में आप जरूर आइए, मिलिए सबसे। तो अलका जी की बात तो हम टाल ही नहीं सकते। हमने कभी टाली, आज तक इनकी बात नहीं टाली। इनकी, अरुण जी की, हमारा इन दोनों से बहुत प्यारा संबंध है, तो हम पहुंच गए हैं। और आज आपसे खूब बातें करेंगे, आपको गाने सुनाएंगे, अलका जी से सुनेंगे, अलका जी के साथ डुएट भी गाएंगे आज। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है हमारा, टचवुड। तो अनूप जी, जस्ट थोड़ा सा एक पर्सनल जगह से मैं ये स्टार्ट करने वाली थी कि मुझे पता है कि आपके पिता पद्मश्री पुरुषोत्तम जलोटा जी, ही इज द वन जो आपके गुरु भी रहे हैं, एंड आपके पिता भी थे। तो मुझे जस्ट यही पूछना था अनूप जी कि कैसा था, वाज इट अ डिफिकल्ट जर्नी, जो पिता एंड गुरु at the same time, was it difficult or was it a smooth journey? मतलब डांट पड़ती थी बहुत कि आराम से चलते थे? एक्चुअली बड़ी ही डिफिकल्ट जर्नी होती है जब फेमस फादर हो और बहुत ही लर्नड फादर हो। तो मुश्किल ये होती है कि क्या उनके सामने हम स्टैंड कर पाएंगे, क्या हम कुछ कर पाएंगे कि लोग हमें भी जाने। क्योंकि पिताजी तो पंडित रविशंकर के साथ प्रोग्राम करते थे, पंडित भीम सिंह जोशी के साथ प्रोग्राम करते थे, तो मुझे लगता था कि हम क्या करेंगे आगे चल के। तो हम उनको देखा करते थे, वो कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, यही सब चीजें हम लाइफ में उतारने की कोशिश करते थे। तो गाने के साथ साथ ये जो पहले गुरुकुल हुआ करते थे ना, गुरुकुल इसलिए होते थे कि आप गाने के साथ साथ गुरु की जो क्वालिटीज हैं, उसका जो व्यवहार है वो भी तो सीखिए, तब कुछ बनेंगे। तो उसके लिए 2 बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं कि
गुण मिले तो गुरु बनाओ, वाह, है ना, गुण मिले तो गुरु बनाओ, और चित्त मिले तो चेला। चित्त का मतलब है चरित्र। राइट। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। वाह, क्या बात है। तो आप अगर किसी को अपना स्टूडेंट बनाते हैं और वो बहुत घटिया पर्सन हो तो आपका नाम खराब होता है ना। जी बिल्कुल। तो चित्त जिसके साथ चरित्र मिलता हो उसको ही चेला बना सकते हैं, और जिसके साथ गुण मिलते हो उसको ही गुरु बना सकते हैं, और जिसके साथ प्रेम मिलता हो उसको मित्र बना सकते हैं। मन मिले तो मित्र बना, वरना रहो अकेला। तो ये चीजें हमने पिताजी से पाई, पिताजी से सीखा, और यही वजह है कि आज तक गा रहे हैं। मुझे गाते गाते 60 साल हो गए, तो पिछले 60 साल से गा रहा हूँ, और अभी भी सेम अटेंशन, सेम एंथुसियाज्म आप में है। तो अनिल जी, और मैं अगर ज्यादा बात करूंगी तो मारेंगे अब सब लोग। तो मैं एक्चुअली आई वांट टू टर्न द फोकस टुवर्ड्स माला चैटर्जी दी और बजीर चामते जी, अगर वो है तो उनका फरमाइश थे आपके लिए। सो इफ वी कैन टर्न द फोकस ऑन देम। अच्छा, मैं माला जी आपको एक स्पेशल चीज सुना रहा हूँ। ओके, थैंक यू। मैं आपको एक नजरुल गीति सुना रहा हूँ। ओह वाओ, थैंक यू। ठीक है अनूप जी, लेट्स स्टार्ट विद द नजरुल गीति। चलिए। খেলিছো এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছো, প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা, নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছো, শূন্য মহাকাশে তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে, ভাঙিছ গড়িছ নীতি ক্ষণে ক্ষণে, নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ, তারকারু বিশুষি হেল না তব হে উদাসী, পড়িয়ে আছে রঙা পায়র কাছে রাশি রাশি, নিত্য তুমি হে উদার, সুখে দুঃখে অবিকার, হাসিছ খেলিছ তুমি আপন শোনে, নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ খেলিছ খেলিছ। थैंक यू, धन्यवाद। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, ब्रिलियंट। एक और बड़ी चामते जी से आप वो सुनना चाहते थे, ऐसी लागी लगन, जो हम लोग सब सुनना चाहते हैं। प्लीज अनु उनको भी सुना दो। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन।
कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। ओफ अनूप जी क्या बोले, मतलब छोटा से जब से आई रिमेम्बर टेलिंग यू द फर्स्ट टाइम आई वाज टॉकिंग टू यू कि मेरे मम्मी पापा आपके इतने बड़े फैन थे, पापा भी तक है, मम्मी तो नहीं है, बट every morning that was like our alarm at 6 o'clock. This was the song that would go on every day in our house. So thank you so much. Thank you so much. एक छोटा सा किस्सा मुझे आपके कुछ पहले के इंटरव्यू से मुझे पता चला कि जब आपको पद्मश्री मिला अनूप जी, तब आपने अपने माँ को फोन किया था, उन्होंने एक बहुत मजेदार किस्सा है, वो तरह अगर सबके लिए सुना दीजिए। मैं मुंबई एयरपोर्ट पे था और शायद इंदौर से आया था जी। तो बेल्ट से मैं अपना सूटकेस उठा रहा था, तो फोन बजा, तो मैंने फोन लिया, तो उन्होंने बोला जी हम दिल्ली से बोल रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से, हम आपको पद्मश्री देना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे? तो एक्चुअली आर्टिस्ट से पूछ लेते हैं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। अच्छा, ओके। कुछ लोग मना भी कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं पद्मश्री नहीं, हमको पद्म भूषण चाहिए। ओह अच्छा। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हमको तो भारत रत्न चाहिए, ऐसा होता है। तो मैंने कहा जी बहुत मुझे खुशी है, बहुत बहुत मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, जरूर आप मुझे दीजिए, मैं रिसीव करने आऊंगा, थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने फिर उसके बाद उसको न्यूज में डाल दिया, टीवी पे आने लगा कि अनूप जलोटा को पद्मश्री दिया जा रहा है इस साल, ऐसा। तो मैंने सबसे पहला फोन अपनी माँ को किया कि आपको बड़ी खुशी होगी कि मुझे इस साल पद्मश्री मिल रहा है। तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ बेटा, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुशी की बात है, अब तुम आज से जरा ठीक से गाना। यही सुनना था मेरे को, इट विल कम फ्रॉम अ मदर ओनली, ये भी है। तो ऐसा होता है कि जब कोई अवार्ड मिलता है, कोई ऑनर मिलता है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसका मतलब थोड़ी कि उसके बाद आप सीधा डिस्को में चले जाइए डांस करने, जिम्मेदारी बढ़ गई कि अब रियाज शुरू कर दिया। और उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में रियाज और शुरू हो गया, मेहनत और शुरू हो गई, क्योंकि अब मुझे प्रूव करना है कि मैं अगर पद्मश्री हूं तो भैया मुझे गलत नहीं दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो मैं उसके लिए फिर और मेहनत करना शुरू कर दिया। अब पद्मश्री मेरे पिताजी को मिल चुका था, तो हम लोग 2 हैं पद्मश्री परिवार में, तो मुझे भी तो दिखाना है कि भाई अगर मुझे मिला है तो कुछ आपको ठीक ठाक गा के सुनाओ। तो तब से मेरी जिंदगी जो है पूरी म्यूजिक में इतनी ज्यादा लग गई है। मैं मतलब मेरी वाइफ मुझे ये कहा करती थी, अब वो नहीं रही, 6 साल पहले वो चली गई, मुझे कहती थी कि आप तो सोते सोते भी गाते हैं, आपको पता नहीं है कि मैं रात को सोते सोते भी कुछ सुर लगाता हूँ। तो वो सब तभी हो सकता है। टोटली मतलब मेरा म्यूजिक से मेरा अफेयर है, म्यूजिक से हाँ मेरा प्यार है, अफेयर है।
बस ये बरकत बरकरार रहे। एक बड़ा अच्छा शेर है गालिब का कि दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, अब किसी पे फिदा नहीं होता। वाह। मतलब जब आपको इश्क मोहब्बत म्यूजिक से हो जाए या पोएट्री से हो जाए तो दिल भर जाता है ना कि हो गया, फुलफिलमेंट हो गया, आपको सब मिल गया। तो वो फिर और उसके लिए बॉक्सेस नहीं है, उसके लिए स्पॉट नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है कि उसमें पूरा रम जाना चाहिए, उसकी नॉलेज को गेन करना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी मैं कल पंडित रविशंकर जी की जो एकेडमी है उसके लिए मैं 1 घंटा गाना गा रहा था, तो उसमें मैंने यही बोला कि रविशंकर जी तो हमारे पितामह हैं इस फील्ड के, तो उनकी एकेडमी में मेरा गाने का मतलब है कि मुझे तो भारत रत्न मिल गया। मेरे लिए कितनी बड़ी चीज है, इतने बड़े आदमी के 100 साल पूरे हुए हैं, उसमें मैं गाना गा रहा हूँ। तो इन चीजों को अगर वैल्यू दे के इंसान जिंदगी चलाएगा तो जिंदगी बड़ी सुंदर हो जाएगी। ये तो बात है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनूप जी। मतलब क्या बोले, आपके गाने सुन सुन के तो हम लोग सब बड़े भी हुए हैं एंड वी आर स्टिल लिस्निंग टू दैट। तो उसी बात पे विधान दास का एक फरमाइश है जो हम सबका फरमाइश है, वो है मैया मोरी नए नहीं माखन खायो। हाँ, वो बहुत अच्छा है, प्लीज। और वो अगर मतलब एक्सप्लेनेशन जो आप वो करते हो ना बीच पे, उसके साथ करो अनूप जी, दैट्स लाइक ऑल द तो बात करते हो आप बीच पे उसका। वो एक्सप्लेनेशन के साथ में जो है वो करीब 20 मिनट का है, फिर आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नहीं शॉर्ट में कर दो आप, ठीक है। शॉर्ट में सुनाऊंगा तो किसी और को भी चांस लगेगा अपनी फरमाइश सुनने। मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं, मैं नहीं माखन खाऊं, घोर भयो गैयन के पाठ से मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंशी बट भट जो साँझ भरे घर आयो। मैं कब माखन खाऊं मैया मोरी, मैं कब माखन खाऊं। मैं बालक बहियन को छू, मैं बालक बहियन को छू, छीको किस विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैल बड़े हैं, पर बस मुख लपटायो। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं। अरे हाँ मेरी मैया, प्यारी मेरी मैया, मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली इनके कहे पति आयो, ये ले अपनी लखती कबलिया बहुत ही नाच नचायो। मैं नहीं माखन खाऊं मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं। मैया मोरी
जियो तेरे कुछ भेदू पज है, तूने मोहे जानो परायो जानो। सूरदास तब हंसी जसोदा ले गुर कंठ लगायो। नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो। कन्हैया तै नहीं मान खायो, कन्हैया मोरे तै नहीं मान खायो। सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैं नहीं मान खायो। अनुप जी पूरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब it's a totally different feeling and nostalgia, absolutely. I mean, I know जो सब सुन रहे हैं, सबके सब तो they want to talk as much as I can talk, I'm sure, but I know. थोड़ा सा आप लोग अब अलका जी की तरफ ही जाते हैं। अलका जी आपका वॉल्यूम ऑन कीजिए आप थोड़ा सा, बस अनुप जी के 2 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। अलका जी आपसे वॉल्यूम ऑन कीजिए अलका जी। हाँ अलका जी, तो आप अब तक मतलब हम लोग तो फर्स्ट वाला सुन लिए, सुपर्ब, यू आर सच अ ब्रिलियंट सिंगर एज वेल, तो थोड़ा सा 2 लाइन में बता दीजिए कि आपका एसोसिएशन अनुप जी के साथ, एंड देन लेट्स हियर योर सेकंड सॉन्ग प्लीज। जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि अनूप जलोटा जी की जो मैं फैन बनी, कि उधमपुर में कश्मीर के पास एक जगह है, वहां पोस्टेड थे मेरे हस्बैंड, वहां पे मैंने इनके गाने सुने, इनकी गजलें सुनी, और बस वो टाइम था कि मैं इनकी बेतहाशा मतलब बहुत जबरदस्त फैन बन गई। और बॉम्बे आते ही मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे आप अनूप जलोटा से मिलवाइए, तो मेरे हस्बैंड ने इनको फोन किया, अनूप जी ने कहा तुरंत आ जाइए। तो द बेस्ट पार्ट वाज कि अनूप जी ने ये भी नहीं कहा कि कभी टाइम लेके आइए, बोले आप आ जाइए, अभी आ जाइए। और बस जो हम लोग मिले तो फिर मिलते ही आ रहे हैं। That is the greatness. अलका जी चलिए आपका सेकंड सॉन्ग। मैं आपको थोड़ा सा ही सुनाती हूँ। राज़ की बात है, महफिल में कहीं या ना कहीं बस गया है कोई इस दिल में, कहीं आना कहीं आना कहीं, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, हो निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। वो तो मत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो मत जिसे इश्क कहती है दुनिया, कहती है दुनिया, वो तो मत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो मत उठाने को जी चाहता है, वो तो मत उठाने को जी चाहता है, वो तो मत उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। नीरेगा गरे गरे मामा गमा नीरेगा गरे 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 रेगा गमा मधनी सा सनी नि दा दा पा गा रे सनी दा पा गा रे नी दा पा गा रे सा नी रेगा मुलाकात का कोई वाह नीरे मामा नीरे रे रे मामा मा धा धा सा नी धा नी पा, ओ
पपी है तूने पपीहे नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनके बनिया, जारे दीवाने माना ताने, पिया की सुन जगे बांसुरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लगी मन में लगन हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। धन्यवाद। वाह वाह अलका जी, आई मीन क्या बात है अलका जी, आपके सामने गाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। अलका जी कमाल करते। अब मैं क्या गाऊं, मैं तो फंस गया। तुम्हारे शहर का मौसम दो लाइन सुनाता हूँ। गरे गरे गरा मदनी गरे गरे तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुराऊं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास की लहरों को पता न लगे, कि आस पास की लहरों को पता न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम कुछ इस कदर तू मेरे साथ बेवफाई है कि तेरे बाद कोई और बेवफा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम। वाह वाह अनूप जी, क्या बोले। मतलब अलका जी ने एक्चुअली अजय चंद्रन जी का रिक्वेस्ट भी डाल दिया, सो इट वाज गुड, इट वाज ऑलरेडी देयर इन आवर थिंग फॉर अजय चंद्रन जी ने बोला ही था कि ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। एक है नुपुर जी का, नुपुर रे का, जो तो नुपुर रे है, उनका एक फरमाइश है, चांद अंगड़ाई ले रहा। हाँ, अभी एक काम करना पड़ेगा क्योंकि आज टाइम बहुत कम रह गया, 15 मिनट और है। मैं गा तो दूंगा जो आप कहेंगी, लेकिन करना क्या चाहिए कि एक 2-3 महीने के बाद में ना एक हम लोगों को और प्रोग्राम करना चाहिए ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें पूरा फरमाइशी प्रोग्राम। जी जी, पूरा फरमाइशी प्रोग्राम 1-1.5 घंटे का रखेंगे तो विल बी ऑनर्ड अनूप जी। मैं तो कल ही आपको फोन कर रही हूँ फिर। अब मेरे से तो पीछा नहीं छूटने वाला आपका। नहीं, अच्छा है ना, कुछ ऐसे भी लोग चाहिए ना जिंदगी में। नहीं बिल्कुल। तो ये जरा गा दीजिए अनूप जी नुपुर जी के लिए। चांद अंगड़ाइयां ले रहा, चांदनी मुस्कुराने लगी, चांद अंगड़ाइयां ले रहा, चांदनी मुस्कुराने लगी, एक भूली हुई सी कहानी, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद
अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। किसने बिखरा दिए अपने केस, अब घटा और छाने लगी है। तौबा तौबा अरे मेरी तौबा, आज फिर डगमगाने लगी है। एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। अश्क आंखों में आए तो पीले, दिल जो रोए तो होठों को सीले। अश्क आंखों में आए तो पीले, दिल जो रोए तो होठों को सीले। ऐ मोहब्बत तेरे आंसुओं पे अब हंसी उनको आने लगी है। एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। ब्यूटीफुल मतलब क्या बोले अनूप जी। आप एक बात बोले, जैसे संगीत फाउंडेशन हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट बिलीव्स इन म्यूजिक टू बी अ थेरेप्यूटिक, यू नो, टू की कामनेस आता है, सुकून आता है इससे। आप भी इसको मानते हो कि यू नो म्यूजिक इज थेरेप्यूटिक फॉर यू? देखिए, म्यूजिक ऐसी चीज है कि थोड़ी देर के लिए आप अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो दुख दर्द भूल जाते हैं। इससे थोड़ा मन को शांति मिलती है, और जब मन को शांति मिलती है तो बहुत सारे इलाज हो जाते हैं शरीर के अंदर। ये नहीं है कि ये कोई दवाई है, संगीत कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन ये आपके मन को जब शांत करता है तो आपका स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस भी तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। लोग आजकल स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं से लेने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से स्ट्रेस पालते हैं दिमाग में, तो वो एक बहुत बड़ी बीमारी। तो स्ट्रेस थोड़ा कम होता है तो मन को शांति मिलती है, और मैं समझता हूँ कि हर एक के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बस यही हम लोग का भी कोशिश रहता है संगीत फाउंडेशन में, थ्रू म्यूजिक टू ट्राई एंड ब्रिंग पीस। तो दूसरा एक जो है शांतनु जी और अपर्णा जी का एक फरमाइश है, वो है वो काला एक बांसुरी वाला। हाँ, ये भजन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भजन। वो तो आपके सारे भजन अच्छे हैं मनोज जी, किसको छोड़ के किसको डूबे। वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। पानी जगा मवा गम सागा धनी पानी जगा मवा गम गम धनी ग पानी जगा वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मुझे, सुध बिसरा गया मोरे। माखन चूर जो नंद किशोर, माखन चूर जो नंद किशोर। कर गयो रे
कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी मोरी को काला एक बांसुरी वाला। पनघट पे मोरी मैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटनी थोड़ी, मैया करूं बिनती मैं पर, माने ना एक वो मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी मोरी को काला एक बांसुरी वाला। छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया न छोड़ी रे, सुध बिसरा गया मोरी मोरी को काला एक बांसुरी वाला। क्या बात है क्या बात है। अभी क्या बोले अरूप जी, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनके जो वर्डिंग्स है अरूप जी, आप चूज कैसे करते हो इनको? देखिए मेरे पास लोग भेजा करते हैं अपने गजल भजन, तो उनको मैं पढ़ता हूँ और 50 बार पढ़ता हूँ एक एक गाने का, और 50 बार पढ़ के अगर मुझे लगा कि मैं बोर नहीं हो रहा हूँ तो मैं उसको गाता हूँ। लेकिन अगर 50 बार पढ़ के मुझे लगा यार बेकार है यार, इसमें कुछ दम नहीं है, तो फिर मैं उसको नहीं गाता। ब्यूटीफुल, मतलब वर्डिंग्स, क्या वर्डिंग्स है इसमें, क्या बोले, लाइक इट्स समथिंग that will never be forgotten, never be forgotten। मैं आपको एक गाना और सुना देता हूँ क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। हाँ, फिर वो डुएट है बस, बल्कि इस 5 मिनट में आपको 2 सुना देता हूँ। आपका डुएट है अलका जी के साथ, अलका जी ने तो हमको मारेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे तुम सुलाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे तुम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये एक्चुअली रिक्वेस्ट भी था, डॉक्टर ऑर्गो शॉर्केल से ये रिक्वेस्ट था, और ब्यूटीफुल नंबर। अब मैं आपको एक आखिरी गाना सुना रहा हूँ। आज जानी किस दिन, इसमें अलका जी मेरे साथ गाने वाली है। एक लाइन मैं गाऊंगा, एक लाइन अलका जी। आज जाने किस दिन, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो। आज आज जाने की
हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो आज, जाने की जिद ना करो जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो कि तुम्हें जाती है जब उठ जाते हो तुम बातें वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, हम सबकी जिंदगी आजकल कैद में, सब अरेस्टेड, लेकिन इसमें मन को खुश रखना बहुत जरूरी है। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद, इनको खो कर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो आज, जाने जिद ना करो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अलका जी का कि उन्होंने मौका दिया कि आज फिर से सब मिल सके। ये 1 घंटा आप सबके साथ बहुत खूबसूरत गुजरा और यही मन में तमन्ना है कि बहुत जल्दी फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू अनूप जी, थैंक यू अनूप जी। लेकिन यही तो लाइन है कि आज जाने की जिद ना करो, लाइन तो वही है कि आज जाने की जिद ना करो, छोड़ने का तो मन ही नहीं करता, ये तो घंटों भर चल जाएगा। But Anup ji, I mean, I know Joyantoda and Amber want to come on and say just thank you so much. वजह अब मैंने तो जैसे बोल दिया, मैं तो पीछा नहीं छोड़ने वाली, अलका जी का भी नहीं आपका, but cannot thank you enough for agreeing to come on Sangeet Foundation. I think Joyantoda, would you want to say something? Absolutely, Anup ji, मैं तो बराबर आपका फैन हूँ last 40 years. जैसे मैंने बोला आपका मैंने प्रोग्राम देखा था पटना में 40 साल पहले, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन संगीत फाउंडेशन और हमारे हौसला अफजाई के लिए, आपके शब्दों के लिए, और ये आपने जो आज हैप्पीनेस दिया हमें थ्रू म्यूजिक, ये हमें हमेशा याद रहेगा। एंड आई एम श्योर कि आप फिर अगर आएंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी। आएंगे, मैंने बोला ना, मैं तो पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तो अब फिर से फोन करूंगी। थैंक यू अनूप जी। बहुत छोटे थे उस समय, पूजा पंडाल में आपका गाना गाया करते थे हम लोग, तो सोचा नहीं था कि कभी लाइव ऐसे सुनूंगी, सो थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया और फिर मिलते हैं जी। नमस्कार। Thank you so much. Thank you so much.